سعودی عرب میں لبیک اللہم لبیک کی روح پرور صداؤں کے ساتھ مناسک حج کا آغاز ہو گیا ہے۔ حجاج خانہ کعبہ میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد احرام باندھ کر منا پہنچ گئے، جہاں دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی بنائی گئی ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ 2 سال سے کرونا وائرس کی وجہ سے بیرون ممالک سے عازمین کی سعودی عرب آمد پر پابندی عائد رہنے کے بعد امسال 10 لاکھ عازمین حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن میں 8.5 لاکھ غیر ملکی عازمین شامل ہیں۔ مناسک حج کی ابتدا ہر سال 8 ذی الحج ہجری سال سے ہوتی ہے۔ حجاج کو 8 ذی الحج کو ظہر سے پہلے منا پہنچنا ہوتا ہے۔ منا میں عازمین حج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں دعائیں اور مناجات کی۔ 9 ذی الحج کو طلوع آفتاب تک عازمین حج وہاں رہیں گے۔ اس کے بعد وہ وقوف عرفات کے لیے روانہ ہو جائیں گے، پھر عرفات میں دن بھر رہنے کے بعد مزدلفہ میں رات گزاریں گے، پھر 3 روز تک قربانی کریں گے اور 3 جمرات العقبہ، جمرہ اولا، جمرہ صغریٰ اور جمرہ کبریٰ کے مناسک ادا کریں گے۔ دنیا کا سب سے مہنگا لباس یعنی غلاف کعبہ کی تکمیل کر لی گئی ہے۔ کئی دہائیوں سے حج کے موقع پر کعبے کا غلاف تبدیل کیا جاتا رہا ہے، تاہم 2022 میں اس روایت میں تبدیلی لائی گئی ہے۔ سعودی حکام کے مطابق رواں برس یہ تقریب نئے اسلامی سال کے آغاز پر یعنی 1 محرم الحرام کو ہوگی۔ اس رپورٹ میں دیکھیے غلاف کعبہ کی تیاری کس طرح ہوتی ہے۔ سینکڑوں کلو گرام ریشم، چاندی اور سنہری دھاگوں سے تیار کیا جانے والا غلاف کعبہ کی تکمیل کر لی گئی ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری کے لیے کام کرنے والے شاہ عبدالعزیز کمپلیکس کے مطابق عید الاضحیٰ کے مبارک دن غلاف کعبہ کو منتظمین کے حوالے کیا جائے گا۔ کئی دہائیوں سے ہر سال ذو الحج کے اسی مہینے میں حج کے موقع پر 9 ذی الحج کو کعبے کا غلاف تبدیل کیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کی تبدیلی کی تقریب نماز عشاء کے بعد قریب 5 گھنٹے تک جاری رہتی ہے اور اسے پوری دنیا میں لوگ براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ تاہم سال 2022 میں اس روایت میں تبدیلی لائی گئی۔ سعودی حکام کے مطابق رواں برس یہ تقریب نئے اسلامی سال کے آغاز پر یعنی 1 محرم الحرام کو ہوگی۔ شاہی فرمان کے مطابق اس سال 10 ذی الحج کو خادم الحرمین شریفین سے کسوہ کو خانہ کعبہ کے منتظمین کے حوالے کیا جائے گا، جبکہ وہ 1 محرم الحرام کو اسے صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین کے حوالے کریں گے۔ This year there is a major change in the protocol of delivering of Kaaba and putting this kiswa on al-Kaaba itself. A royal decree has been issued that the delivery of this, the protocol of delivery of this kiswa will be on the 10th of Dhul Hijjah, means the first day of Eid. The change of Kaaba of this kiswa will be on the 1st of Hijra year. أنا أعيش بفخر، يعني أحس إني فخر أشوف نفس الثوب بينزل تلبس ثوب جديد من شغل يدينا، يعني 40 سنة وإحنا نشتغل في الثوب، كل سنة الحمد لله، هذا فخر من الله عز وجل، نعمة ترى۔ خانہ کعبہ کی دیواروں اور باب کعبہ کو جس کپڑے سے ڈھانپا جاتا ہے اسے غلاف کعبہ یا کسوۃ الکعبہ کہتے ہیں۔ غلاف کعبہ کی تیاری کی بات کی جائے تو یہ دنیا کا مہنگا ترین غلاف ہے، جس کی تیاری پر 25 ملین سعودی ریال خرچ آتا ہے۔ غلاف کعبہ 185 ہنرمندوں کی سال بھر کی محنت سے تیار ہوتا ہے۔ اس کی تیاری میں 700 کلو گرام خالص ریشم، 300 کلو گرام کاٹن، 100 کلو گرام چاندی کا دھاگا اور 120 کلو گرام چاندی کے تار کا استعمال کیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری کے دوران استعمال ہونے والے پانی تک کو پاک کیا جاتا ہے۔ غلاف کعبہ کی تیاری میں استعمال کیے جانے والے ریشم کو پاک پانی سے دھویا جاتا ہے۔ جس ریشم سے اسے تیار کیا جاتا ہے اس پر سنہری اور چاندی کے تاروں سے قرآنی آیات کندہ کی جاتی ہیں۔ غلاف کی تیاری میں استعمال کیا جانے والا ریشم اٹلی، جبکہ سنہری اور چاندی کی تاریں جرمنی سے آتی ہیں۔ ریشمی دھاگوں کی موٹائی 3 ملی میٹر ہوتی ہے، جو مضبوطی اور لچک کی ضمانت دیتی ہے۔ اس غلاف کی تیاری پر 25 ملین سعودی ریال خرچ آتا ہے، یعنی تاریخ کا سب سے مہنگا غلاف۔ اس کی تیاری کے لیے سعودی حکومت نے الگ سے ایک کارخانہ قائم کر رکھا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پرانے غلاف کا کیا کیا جاتا ہے۔
सऊदी हुक्काम के मुताबिक पुराने गिलाफ काबा को उतार के छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है और सऊदी अरब का दौरा करने वाले मुसलमान मुल्कों के रहनुमाओं को बतौर तोहफा ये टुकड़े पेश किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर मिस्र की बिरकाश केमल मार्केट, जो ऊंटों की सबसे बड़ी मार्केट है, यहां खरीदारों का हुजूम बढ़ गया है। इस मंडी में लीबिया, सूडान, सोमालिया और मिस्र के दीगर खित्तों से लोग ऊंट खरीदने के लिए आते हैं। ईद उल अजहा के मौके पर ऊंट की कुर्बानी के लिए लोगों की बड़ी तादाद इस मार्केट का रुख कर रही है। बाजार में रोजाना सैकड़ों ऊंट फरोख्त हो रहे हैं। अब जबकि ईद को चंद रोज बाकी रहे हैं तो ताजरों को मजीद ग्राहकों के आने की उम्मीद है। फलस्तीनी शहर रमला में भी मुसलमान ईद उल अजहा की तैयारियों में मसरूफ है। रवा साल दुकानदारों और ताजरों को मायूसी हाथ आ रही है क्योंकि महंगाई की वजह से खरीदार गायब है। यहाँ के एक मकामी फल फरोश ने बताया कि फलों, मिठाइयों और मेवे की मांग पिछले सालों के मुकाबले में बहुत कम है। उन्होंने कहा कि उनके पास अशिया की वाफर मिकदार मौजूद है लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है। एक और मकामी रिहायशी का कहना है कि बाजार भरे होने के बावजूद बहुत से खरीदारों को ईद की खरीदारी के लिए कर्ज लेना पड़ा है। काबिल जिक्र है कि फलस्तीनी मईशत को चैलेंज का सामना है, जिसकी एक वजह कोरोना वायरस की पाबंदियों में नरमी के बाद बहाली के आसार के बावजूद आलमी इमदाद में कमी आई है। الايام هاي وقفات عيد كان يكون اقبال على الفواكه منيح وعلى الحلويات وعلى المكسرات. هاي زي ما انت شايف المكسرات زي ما هي واقفه والحلويات والفواكه زي ما هي، فالناس مش قدرتها انها تشتري الاشياء الغاليه. الوضع الاقتصادي مع الناس صعب جدا، يعني انا مثل هلقيت الوقت بكون عندي 20 زبون، يعني هلقيت هاي بسط مش عليها ولا زبون. الناس الان تعيش في اجواء غلاء فاحش مع قله الدخل، حتى لو اننا نرى السوق ملآن بالناس، ولكن هم يعني بحاجه ماسه انهم يعملوا هذا الشيء ويشتروا اللازم. يعني قد يكون معظم الناس انهم من ديون اشتروا الامور اللي بحاجه لها حتى يدخل الفرحه والسرور. सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पाकिस्तान भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ती रही है। खरीदार और व्यापारी दोनों ही बढ़ती हुई महंगाई से नाला नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल मवेशियों, ऊंट और बकरियों की कीमत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पाकिस्तान भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। खरीदार और व्यापारी दोनों ही बढ़ती हुई महंगाई से नाला नजर आ रहे हैं। ताहम साल ब साल जानवरों की कीमतों में इजाफे ने कुर्बानी के फरीजे के सिलसिले में तो कमी नहीं की, ताहम महंगाई के बायस इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान जरूर बढ़ गया है। बावजूद इसके लोग ईद उल अजहा के लिए मवेशियों की खरीदारी के लिए मंडियों का रुख कर रहे हैं। इस्लामाबाद के बाजारों में एक अलग ही मंजर देखने को मिल रहा है। यहाँ ग्राहकों को राग़िब करने के लिए मवेशियों, ऊंट और बकरियों को खूब सजाया गया है। पाकिस्तान में आमतौर पर यह त्योहार माशी सरगर्मियों के लिए सूदमंद साबित होता है और एक तरह से मईशत को मुतहरिक करता है। लेकिन इस साल पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के रिहायशियों की शिकायत है कि मंडियों में जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा है। जायद कीमतों के बायस अक्सर लोग सिर्फ इन्हें देखकर ही गुजारा कर रहे हैं। ये 8 किलो आटा खा रहा है, 8 किलो दूध पी रहा है, तो इसलिए इस 5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं जी। वजन तो देखो ना उसका कितना है। और खाने की अशिया की कीमतें गुज़िश्ता साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ताजिरों को शिकायत है कि ग्राहक ज्यादा कीमतें अदा करने को तैयार नहीं है। इन ताजिरों के लिए मवेशियों में जिल्द की बीमारी फैलने की वजह से सूरत हाल पेचीदा हो गई है, क्योंकि बड़ी तादाद में जानवरों को वेटरनरी हुकाम ने मंडियों में लाने से मना कर दिया है। मगर व्यापारियों को तवक्को है कि ईद के चंद रोज रह गए हैं, यकीनन खरीदारों की तादाद में और इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक
والنعمة لك والملك لا شريك لك. مینا، مزدلفہ اور مسجد الحرام سے حج بیت اللہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ. حج بیت اللہ بروز جمعہ دوپہر 1:56 پر اور رات 7:56 پر. بروز سنیچر صبح 8:26 پر. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. مینا، مزدلفہ اور مسجد الحرام سے حج بیت اللہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ. حج بیت اللہ بروز جمعہ دوپہر 1:56 پر اور رات 7:56 پر. بروز سنیچر صبح 8:26 پر. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے ایک پریس کانفرنس میں اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے. بورس جانسن نے پارٹی قیادت سے بھی مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ نئے پارٹی لیڈر کے آنے تک وہ اپنے فرائض انجام کریں گے. انہوں نے کہا کہ نئے سربراہ کے انتخاب کا عمل اب شروع ہونا چاہیے. دوسری طرف کنزرویٹو پارٹی کو اب نیا لیڈر کا انتخاب کرنا ہوگا اور اس عمل کے لیے کئی ہفتے اور مہینے بھی لگ سکتے ہیں. دیکھیے رپورٹ. برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن نے اپنی ہی کابینہ کے بیشتر وزراء کے استعفے اور پارٹی میں اختلافات کے بعد کنزرویٹو پارٹی کی قیادت سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا، لیکن وہ نئے لیڈر کے انتخاب تک وزیراعظم بنے رہیں گے. ٹوائٹر کے مطابق بورس جانسن نے برطانیہ میں وزیراعظم کی سرکاری رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پر تصدیق کی کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے. انہوں نے کہا کہ نئے لیڈر کے انتخاب کا عمل اب شروع ہو جانا چاہیے. بورس جانسن کا کہنا تھا کہ آج میں نے ایک نئی کابینہ کا تقرر کیا ہے اور جب تک نیا لیڈر نہیں آتا میں کام کرتا رہوں گا. Good afternoon everybody. Good afternoon. Thank you. It is clearly now the will of the Parliamentary Conservative Party that there should be a new leader of that party and therefore a new Prime Minister. And I've agreed with Sir Graham Brady, the chairman of our backbench MPs, that the process of choosing that new leader should begin now. And the timetable will be announced next week. And I've today appointed a cabinet to serve as I will until a new leader is in place. بورس جانسن کا کہنا ہے کہ بریگزٹ سے لے کر ملک کو وبا سے نکالنے تک اور یوکرین پر روسی جارحیت کے خلاف کھڑے ہونے والے مغرب کی قیادت کرنے تک انہیں اپنی حکومت کی کارکردگی پر بے حد فخر ہے. And of course I'm immensely proud of the achievements of this government, from getting Brexit done to settling our relations with the continent for over half a century, reclaiming the power for this country to make its own laws in Parliament, getting us all through the pandemic, delivering the fastest vaccine rollout in Europe, the fastest exit from lockdown, and in the last few months
leading the West in standing up to Putin's aggression in Ukraine. बोरिस जॉनसन की अपनी ही काबीना के बेशतर वज़रा के इस्तीफे और पार्टी में इख्तिलाफात के बाद जॉनसन के मुस्तफ़ी होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था। इससे कबल बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने डट कर सियासी सूरत-ए-हाल का मुकाबला किया। बरतानिया में कई रोज से जारी सियासी बहरान की वजह हुक्मरान जमात के अंदर पैदा होने वाले इख्तिलाफात और वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन पर आए रोज नित नए स्कैंडल में मुलविस होने के इल्जामात बताए जा रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के कई अरकान बोरिस जॉनसन से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। सियासी बहरान में शिद्दत उस वक्त आई जब जॉनसन काबीना के 50 से ज्यादा वज़रा ने इस्तीफा दे दिया। वज़रा के इस्तीफों के बाद बोरिस जॉनसन पर ओहदा छोड़ने के लिए दबाव में इजाफा हो गया था। 90 साल के दौरान ये पहला मौका था कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म पर खुद उनकी जमात के वज़रा ने अदम एतमाद का इजहार किया। जॉनसन के काबीना के कई अहम वज़रा ने चंद रोज के दौरान अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया था। हत्ता कि बुध को वज़ीर खजाना बनने वाले नाजिम अल-जावी ने भी वज़ीर-ए-आज़म से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया था। इससे कबल जून में बोरिस जॉनसन ऐवान नुमाइंदगान में होने वाले अदम एतमाद की तहरीक में अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने में कामयाब रहे थे। तहरीक अदम एतमाद की कार्रवाई के दौरान ऐवान में हिज़्ब इख्तिलाफ समेत इन्हें अपनी ही पार्टी के 148 मेंबरान की बगावत का सामना करना पड़ा था। जॉनसन अपने खिलाफ स्कैंडल्स पर आमतौर पर तवज्जो नहीं देते, लेकिन हालिया महीनों में वो अपने और साथियों के बारे में कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दौरान मुनक्किद की जाने वाली पार्टियों की खबरों के बाइस सियासी तौर पर मुश्किलात का शिकार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। ईरान में हुकाम ने एक बरतानवी सफारतकार और पोलैंड से ताल्लुक़ रखने वाले एक प्रोफेसर समेत मुतअद्दिद गैर मुल्कियों को जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने गुज़िश्ता रोज़ इन गैर मुल्कियों को हिरासत में लिए जाने की खबर दी है। गिरफ्तार अफराद में तेहरान में मुतय्यन बरतानिया के दूसरे सीनियर तरीन सफारतकार भी शामिल हैं। ताहम बरतानिया ने अपने किसी सफारतकार की गिरफ्तारी की तरदीद की है। ईरानी टेलीविजन के मुताबिक ये अफराद ईरान के वस्ती सहरा में मिट्टी के नमूने इकट्ठा कर रहे थे, जहां सिपाहपासदारान इनकलाब की एरोस्पेस यूनिट ने हाल ही में जंगी मशक़ें की थी। एक वीडियो फुटेज भी जारी की गई है जिसमें तेहरान में बरतानवी सफारतखाने के नायब सफ़ीर ईरान में दिखाई दे रहे हैं। मजहबी जज्बात को मजरूह करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर का मामला अब बैनुल-अक़वामी सतह पर पहुंच गया है। जर्मनी ने सहाफ़ी जुबैर की गिरफ्तारी पर सवालात उठाए हैं। जर्मनी की वज़ारत ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हिंदुस्तान खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत करार देता है, इसलिए उससे तवक्का की जाती है कि वो आज़ादी इज़हार राय और आज़ादी सहाफ़त जैसी जमहूरी इक़दार को अपने तरजीह दें। जर्मन वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि हम अक्सर दुनिया भर में आज़ादी इज़हार राय पर जोर देते हैं और आज़ादी सहाफ़त के पाबंद हैं। ये बहुत अहम है और इसका इतलाक़ हिंदुस्तान पर भी होता है। किसी भी मुआशरे के लिए ज़रूरी है कि बग़ैर किसी पाबंदी और दबाव के सहाफ़त हो, लेकिन इसका ऐसा न होना बाइस तशवीश है। वहीं दूसरी तरफ हुकूमत हिंद ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर जर्मन वज़ारत ख़ारजा के बयान को मुस्तरद कर दिया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ए बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदुस्तान का घरेलू मामला है, इस मामले की अदालती तहक़ीक़ात अभी जारी है। मुझे नहीं लगता कि मैं या किसी के लिए इस मामले पर तबसरा करना दुरुस्त है। My case of Mohammed Zubair's arrest, look, in itself it's a domestic issue, but you mentioned about the comments by certain countries. Let me emphasize that there is a judicial process underway in this case, and I don't think it would be appropriate for me or anyone else to comment on a case that is sub judice. I think the independence of our judiciary is well recognized, and uninformed comments are unhelpful and should be avoided. एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहक़ीक़ात के लिए चीनी मोबाइल कंपनी वीवो और उससे मुंसलिक कंपनियों के मुल्क भर में 48 मकामात पर छापे मारे हैं। खबर रसाई एजेंसी PTI के मुताबिक वीवो इंडिया ने भारत में टैक्स की अदायगी से बचने के लिए अपने कारोबार के तकरीबन 62,000 करोड़ रुपए चीन भेजे। अब इस मामले में चीनी सफारतखाने के तर्जुमान वांग शाजियान ने भी वीवो इंडिया पर ED के छापे पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम मामले पर नजर रखे हुए हैं। चीनी हुकूमत हमेशा चीनी कंपनियों से बैरून मुल्क कवानीन की तामील करने के लिए कहती है और उनके हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में उनकी मजबूती से हिमायत करती है। उन्होंने कहा कि चीन चाहता है कि हिंदुस्तानी फरीक कानून के तहत तहक़ीक़ात करे और मुनसिफाना और गैर इम्तियाजी कारोबारी माहौल बनाने में मदद करे।
इंडोनेशिया में मुनक्किद होने वाली G20 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग के दौरान एस जयशंकर ने चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात की है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। इस मीटिंग के दौरान वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने मशरक़ी लद्दाख और LAC के मसले पर वांग यी से बात की और तारी जमूद को बहाल करने पर जोर दिया। दोनों के बीच बातचीत 1 घंटे तक जारी रही। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी अमूर बशमूल परवाज़ों समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल भी किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया कि दोनों अतराफ के फौजी हुकाम बाकायदा राब्ते में रहेंगे और जल्द ही सीनियर कमांडर सतह का इजलास बुलाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात, बाहमी एहतराम, बाहमी हसासियत और बाहमी मफादात को जहन में रख कर ही बहाल किए जा सकते हैं। यूक्रेन की अफवाज ने जुमेरात को फुटेज जारी किया जिसमें बहरियाए अस्वद के एक स्ट्रैटेजिक जजीरे पर फौजियों को कौमी परचम लहराते हुए दिखाया गया। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि यूक्रेनी मिसाइल हमलों के बाद रूसी अफवाज को 2 छोटी स्पीड बोट्स में भागने पर मजबूर किया गया। उन्होंने दावा किया कि सैनिक आइलैंड पर अब यूक्रेन का कब्जा है। На фоне военных провалов и массового отступления украинских войск на Донбассе ночью 7 июля киевским режимом была предпринята попытка символической доставки флага на остров Змеиный. Около 5 утра на остров высадились с моторной лодки несколько украинских военнослужащих, которые сфотографировались с флагом. Самолетом ВКС России был немедленно нанесен удар высокоточными ракетами по острову Змеиный, в результате которого часть украинских военнослужащих была уничтожена. Оставшиеся в живых сбежали в направлении населенного пункта Приморска. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।